Hello everyone, this is Mandeep Singh Shekhawat and today we will be discussing mystery of time in distributed system, and today we are discussing our part 3. This is our part 3 in the series of mystery of time in distributed system, where we'll be focusing on the use case of vector clocks. Earlier in the last video we discussed that there are two type of logical clocks की हमने बात करी थी. One was Lamport timestamp, Lamport clock की हमने बात करी थी. Then we discussed around vector clocks. There were some issues in the Lamport timestamps and we tried to resolve those issues by using vector clocks. So vector clock seemed to be a perfect solution. बस solution लग रहा था हमें लग रहा था कि we should always use vector clock. काफ़ी खतरनाक solution है, but there were certain downsides to it as well. We did discuss in our last video कि Cassandra में हम vector clocks use नहीं करते. We are not using vector clocks in Cassandra. So how we are resolving the conflicts? We for the conflicts resolution we do require a solution. तो अगर हम ऐसे बात करते हैं database की, so there can be multiple replicas in the database, right? And Cassandra or DynamoDB, they are mostly I think leaderless. They provide leaderless replication. So in those scenarios all nodes are kind of same. ठीक है, तो फॉर ईच एंड एवरी रेप्लिका यू हैव टू मेंटेन दैट द डेटा इज रेप्लिकेटेड टू ऑल द नोड्स. देयर कैन बी सर्टेन इश्यूज, देयर कैन बी कंकरेंट राइट्स. तो यू विल हैव टू रिजोल्व दोज कॉन्फ्लिक्ट्स, और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म. तो हम बोल रहे हैं कि वेक्टर क्लॉक्स, हम बोल रहे थे कि वेक्टर क्लॉक्स हम यूज़ कर लेंगे अगर हमें कॉन्फ्लिक्ट्स आती है, बट वी आर सेइंग टुडे दैट कैसेंड्रा इज़ नॉट यूजिंग वेक्टर क्लॉक. सो व्हाट वी आर यूजिंग देन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक बिफोर मूविंग टू कि कैसेंड्रा क्या यूज़ करता है एक्चुअली, बिफोर वी विल डिस्कस हाउ एक्चुअली दिस कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व यूजिंग वेक्टर क्लॉक्स. ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. मतलब पहले तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट कैन कॉज एंड हाउ वेक्टर क्लॉक्स रिजॉल्व इट, एंड देन वी विल मूव टू द प्रॉब्लम्स इट कैन कॉज, या फिर जो भी ऑप्टिमाइजेशन की बोल सकते हो आप, या फिर कॉम्प्लेक्स लॉजिक बोल सकते हो बाय यूजिंग वेक्टर क्लॉक. सो वी विल ट्राई टू रिड्यूस दैट, क्योंकि डेटा काफ़ी बड़ा है भाई. ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना चाहिए. ऐसा नहीं कि तुमने अच्छी सी एल्गोरिथम बना दी तो आप यूज़ कर लेंगे, ऐसे हम यूज़ नहीं करेंगे. वी विल ओनली यूज़ इट बट इफ़ इट इज़ सुटेबल फॉर आर यूज़ केस. सो the reference for this video is from DataStax blog, so I will add that link as well in the video description. अगर आपको पढ़ना पसंद है तो यू कैन गो चेक आउट दैट ब्लॉग, और अगर आपको वीडियो देखना पसंद है तो मनदीप तो है ही. तो मनदीप यहाँ पे आपको समझा रहा है why Cassandra is not using vector clocks. So let's try to understand it with the help of this example. So key here is your Mandeep. We are talking about key value data store. So key here is your Mandeep and these are the values. So if we talk about the schema of a table, this is our schema of a table. Your primary key is your text. मतलब मनदीप आप स्ट्रिंग एक स्टोर कर रहे हो, देन यू हैव टू वैल्यूज़ फॉर ईच ऑफ दिस कीज विच इज़ ईमेल एंड फ़ोन नंबर. तो मनदीप का हम ईमेल और फ़ोन नंबर स्टोर करने वाले हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द वर्जन 0, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक व्हेन यू क्रिएटेड दिस टेबल एंड देन यू अपडेटेड सम वैल्यूज इनसाइड इट, व्हाट वाज द वर्जन 0? योर ईमेल वाज msdeep14.ms@gmail.com एंड योर फ़ोन वाज नहीं बताऊंगा, फ़ोन नहीं बताऊंगा. सो दिस वाज आर अर्लियर लाइक द मोस्ट first entry in the database for this specific key Mandeep. After that this is your v0, this is your v1. ये हम इस पे बाद में आएंगे. अभी right now we are on v0. so this is our version 0. then you are updating a email address. एक request आई client ने बोला कि हाँ भाई email update कर दो. so your new email, the version v1 of this key Mandeep looks like your email is msdeep14@msdeepsingh.com and your phone is still the same. अभी भी फ़ोन नंबर मनदीप नहीं बता रहा है. तो right now you have two versions, v0 and v1. ठीक है. now what if, let's assume that when the replication was happening inside the replicas, the initially it was written to v1. now by default it should happen कि जो भी नोड्स हैं उनमें ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइजेशन हो जाए. मतलब इवेंचुअल कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं. We are not talking about strong consistency here. We are saying that eventually all the replicas will be merged, but in the certain timestamp की मतलब एक घंटे तक भी रिजोल्व कंसिस्टेंट नहीं हुआ. देयर वर सम नेटवर्क फॉल्ट्स इनसाइड द नोड. सो इन दोज सिनेरियोज व्हाट इफ अ न्यू अपडेट कम्स, सो इट कैन कॉज इश्यूज कैसे? So your update failed due to network issues on this particular replica. So in this particular replica you still have version 0, and on this particular replica you have version v1. so let's say your new update came. in this case you are updating the phone number. मनदीप पहले फ़ोन नंबर नहीं बता रहा था, अभी मनदीप फ़ोन नंबर बताएगा. हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी है उससे कि भाई नंबर बताओ अपने, समझ रहे हो? तो नंबर अभी मनदीप बताएगा, पर नंबर जो बता रहा है
नंबर जो बता रहा है वी विल नॉट बी एबल टू अपडेट ऑन ऑल द रेप्लिकास। क्यों? बिकॉज देर इज सम नेटवर्क फॉल्ट। ये नोड्स आपस में बात कर रहे होंगे, ये बात नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू। किसी ने केबल जाके तोड़ दी है कि मैंने कहा कि मनदीप नंबर तो बता देगा कि, पर लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, तो लोगों ने केबल तोड़ दी कि भाई नेटवर्क फॉल्ट आ गई है, अभी रेप्लिका में डाटा जाएगा ही नहीं, तो मनदीप फ़ोन नंबर रेप्लिकेट वो क्या बताएगा कैसे? तो दिक्कत क्या हो रही है? When this update came, you read from the replica 1 and then you updated it. So replica 1 में जो अपडेट थी वो कौन सी थी? replica 1 में आपकी जो अपडेट थी वो ये थी msdeep14.ms@gmail.com and your phone number was नहीं बताऊंगा. So if you talk about V0 to V2, you have missed your update 1 and your V2 is email is msdeep14.ms@gmail.com and this is your phone number. दिस इज़ योर फ़ोन नंबर. काफ़ी खतरनाक फ़ोन नंबर है, याद कर लीजिए. आपको इस फ़ोन नंबर पर डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं. आपको कोई भी क्वेरीज आती है, कोई भी डाउट्स आती है, यू कैन डायरेक्टली आस्क ऑन दिस नंबर. नाउ in general, last write wins algorithm picks most recent write. We did discuss this in case of Lamport timestamp as well, that we will try to pick up the most recent write. Which one is the recent write according to a timestamp. But in that scenario what will happen कि आप एक अपडेट लॉस्ट कर दे रहे हो. यू आर ऑल डायरेक्टली अपडेटिंग फ्रॉम V0 टू V1. देयर वाज समथिंग इन बिटवीन. V1 कुछ हो रहा था, उस V1 का क्या हुआ वी डोंट नो दैट. अगर यू ऑल डायरेक्टली पिक द मोस्ट रिसेंट अपडेट, सो V1 इज डिस्कार्डेड इन दिस केस एंड V2 इज पिक्ड. दिस इज द डेटा लॉस. ठीक है, दिस इज़ द डेटा लॉस. बट देर कैन बी सम सिनेरियोज जहाँ पे डेटा लॉस हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, या फिर आर बिजनेस लॉजिक, बिजनेस यूज केस डोंट अलाउ टू लूज डेटा. इवेंचुअल कंसिस्टेंसी इज फाइन कि कुछ देर बाद मेरे पास डेटा आ जाएगा, पर तुम तो बोल रहे हो कि डेटा गायब भी हो जाएगा. है भाई, क्या कर रहे हो? कौन सा डेटाबेस बना दिया तुमने? है ऐसा डेटाबेस नहीं चाहिए हमें. तो फॉर वेक्टर क्लॉक वी आर कीपिंग बोथ वर्जन एंड V2. We already discussed this in our last chapter, in last video, that in vector clock you are keeping both versions V1 and V2. And in that case when clients ask for that request कि अपना ये हैंडसम लड़का मनदीप है, ये अपना क्लाइंट है और ये अपना कैसेंड्रा का क्लस्टर है. ठीक है, तो कैसेंड्रा के क्लस्टर में इन केस देर आर मल्टीपल अपडेट्स ऑन दोज रेप्लिकाज, इन केस देर आर मल्टीपल अपडेट्स, मल्टीपल वर्जन्स ऑफ दैट इन केस ऑफ कैसेंड्रा, सो वी विल अपडेट बोथ द वर्जन्स. ठीक है, सो वी विल रिटर्न बोथ V1 एंड V2 टू मनदीप. अब मनदीप क्या करेगा? मनदीप देखेगा कि V1 V2 आ रहे हैं मेरे पास, दो अपडेट आ गई हैं, दो वर्जन आ गए हैं मेरे पास. नाउ आई हैव टू डिसाइड हाउ आई हैव टू मर्ज देम. सो बेसिकली आई कैन लाइक आइदर आई डिस्कार्ड वन ऑफ दिस. ठीक है, कि मैं मोस्ट रिसेंट पिक कर लेता हूँ. सो दैट इज़ वन थिंग. अनदर थिंग कुड की भी आई मर्ज बोथ दिस रिकॉर्ड्स. ठीक है, सो इन दिस सिनेरियो your phone number is updated in this V2. You have phone number is updated. In case of V1 your email is updated. ठीक है, सो इन केस ऑफ नो डेटा लॉस सिनेरियो यू शुड हैव बोथ ईमेल एंड फोन नंबर अपडेटेड. तो आपका जो ईमेल है वो होना चाहिए msdeep14.ms@msdeepsingh.com. ये मेरा एक्चुअल वैसे ईमेल एड्रेस नहीं है, आप इसको ना यूज़ करें कहीं भी. अगर आपको कोई भी क्वेरीज आती है, यू कैन डायरेक्टली यूज़ दिस फॉर एनी सजेशंस, फॉर एनी क्वेरीज, फॉर एनी डाउट्स, एनीथिंग. यू कैन यूज़ दिस ईमेल एंड डायरेक्ट ईमेल मी. आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड एंड हम बातचीत कर सकते हैं उस तरीके से. सो इन दिस सिनेरियो व्हाट वी आर सेइंग दैट यू विल रिटर्न बोथ द वर्जन्स टू क्लाइंट ऑन नेक्स्ट रीड एंड क्लाइंट कैन मर्ज एज अप्रोप्रिएट. व्हेन वी से मर्ज, आइदर वी मर्ज देम, आइदर वी पिक अप मोस्ट रिसेंट वन, एनी लॉजिक वी वांट टू कीप. ठीक है, मेरे ऊपर है. तुम मेरे को सारा डेटा भेजो जो मैंने लिखा है, तुम मेरे को सारा डेटा भेजो जो मैंने लिखा है. आई विल हैंडल इट. आई विल रोट माई ओन कोड. आई विल राइट. एक तो मनदीप की इंग्लिश बहुत ख़राब है, तो आई विल राइट माई ओन कोड to handle it specifically कि whichever way I want to do it, I will do it. पर डेटा लॉस नहीं होना चाहिए. तो this seems a perfectly fine solution. So what are the downsides? कैसेंड्रा अगर वेक्टर क्लॉक्स को यूज़ नहीं कर रहा है तो there are some downsides, right? So what are those? One is performance. So if you see here, if you see the cycle of the write, if I want to update specific entry कि मेरे को V0 से V1 जाना है, I want to move from V0 to V1. So what you have to do in this case, you have to update the entry. Now first you will read the entry. ठीक है, आप रीड कर रहे हैं, देन यू विल डीसीरियलाइज इट. वहाँ पे डायरेक्टली आपका टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर नहीं हो रहा है. यू आर समहाउ सीरियलाइजिंग इट बाय यूजिंग सम एल्गोरिथम. कोई भी आपका एल्गोरिथम आप यूज़ कर रहे हो, यू आर सीरियलाइजिंग इट. सो यू हैव टू डीसीरियलाइज इट बैक.
दिस इज द फर्स्ट स्टेप. देन यू विल एक्चुअली अपडेट दैट स्पेसिफिक फील्ड. ठीक है, आपकी जो स्पेसिफिक फील्ड है यू आर अपडेटिंग दैट, एंड देन यू आर देन यू विल अगेन serialize it and then write back. So if you see here, there are three operations which you have to carry out, for a specific update operation. क्या ये feasible है? क्या ये feasible है for high TPS serving application? If my application is very write heavy, if my application is very update heavy, write heavy, read heavy मान लो नहीं है अपना इतना, but our application is mostly write heavy, तो काफ़ी दिक्कत आ जानी है. It will impact our application, मतलब latent write हो सकती है. Another thing is siblings. So we have to maintain multiple versions, right? In case of vector clocks, in the last video we discussed that you will have to maintain multiple versions of all those, like how the events are flowing. ठीक है, how events are flowing across the nodes, you have to maintain multiple versions at each and every node. आपने देखा होगा कि वो हम T0 T1 T0 T1 T2 we are maintaining all those versions of timestamp version for each and every node, कि आप काउंटर रख रहे हो कि हाँ भी इस टाइम पे इतना, इस टाइम पे इतना, ये मैसेज था इस पे भी इतना है. सो यू आर मेंटेनिंग लॉट ऑफ दोज थिंग्स एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू डील. काफ़ी आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा. नाउ वेक्टर क्लॉक्स डोंट एक्चुअली स्पेसिफाई हाउ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स. इफ यू सी हियर, राइट, if you see here, in case of vector clocks I am returning both the versions v1 and v2, बट आई एम नॉट स्पेसिफाइंग कि आपको एक्चुअली कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कैसे करनी है. दिस लॉजिक हैज़ टू बी इन प्लेस एट क्लाइंट्स एंड एप्लीकेशन कोड में. यू हैव टू राइट दैट स्पेसिफिक लॉजिक टू रिजॉल्व दोज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और हाउ यू वांट टू स्पेसिफिकली हैंडल दैम. सीधी सी बात है, वेक्टर क्लॉक बोलता है कि मेरे को मतलब नहीं है, आपका डेटा लॉस नहीं होगा, आई विल रिटर्न ऑल द वर्जन्स टू यू. नाउ यू डिसाइड कि आपको कैसे करना है. समझे बात? सो these are the some downsides. Now how Cassandra actually handles it, what is the solution in place in Cassandra? So in case of Cassandra, rows are broken into columns and updated independently. वहाँ पे हमने बात कर रहे थे कि आपका पर्टिकुलर जो वर्जन है, आपका जो पर्टिकुलर एंट्री है वो एक साथ अपडेट हो रही है. वी विल ट्राई टू ब्रेक इट इन स्पेसिफिक कॉलम्स. कि ईमेल आपका एक कॉलम है, फ़ोन नंबर एक कॉलम है. यू विल ट्राई टू अपडेट दम इंडिपेंडेंटली, कि मैं एक एक जाके अपडेट करूंगा. अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आती है देन आई विल रिजॉल्व दम अकॉर्डिंग टू द टाइम स्टैम्प ऑफ ईच एंड एवरी कॉलम व्हेन इट वाज अपडेटेड. ठीक है, सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल. सो दिस इज आवर टेबल एंड इनिशियल दीज आर द वैल्यूज़. ठीक है, जो आपकी मनदीप और जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था कि यू हैव ईमेल एंड देन यू हैव फ़ोन नंबर. नाउ इफ़ यू आर अपडेटिंग ए ईमेल यू विल ओनली अपडेट दैट कॉलम. ठीक है, दिस इज योर स्पेसिफिक क्वेरी. इफ़ यू आर अपडेटिंग फ़ोन नंबर देन यू आर ओनली अपडेटिंग द फ़ोन नंबर. समझे बात? in this case what is the benefit? The conflicts can be resolved automatically. You don't have to write specific logic and these can be resolved basis timestamp. अब for those timestamp you can either use any of the synchronization mechanism so that nodes don't go out of sync and you can resolve the conflicts basis the timestamp for each and every column. यहाँ पे आप independently focus कर रहे हो, you are not specifically focused on entire row. जो आपकी entire row है उस पे आप conflicts resolve करने की कोशिश नहीं कर रहे, you are trying to resolve the conflicts at column level. अगर column में आपको कोई नई value दिखती है then you will pick up the most recent value basis timestamp जो है आपका according to do it we will try to resolve conflict. So this is the reason why Cassandra don't use vector clocks. This is all we will be discussing in this video. अगर आपको कंटेंट पसंद आता है then you can consider subscribing our channel which is MS Dev Singh. We keep on making content on distributed systems और काफ़ी खतरनाक कंटेंट बनाता है मनदीप. So let's meet again in our next video. तब तक के लिए stay safe, टाटा, बाय बाय.